Now class 12 we are starting with ethers, and this particular portion comes in your alcohol, phenols and ethers. It's a part of your organic chemistry. If you remember the ethers, then you should remember the general formula, that is ROR. These R's are same also and different also, if you remember that from your class 10 standard. And this is the eternal group which is there, and over here the R's are either alkyl groups or aryl group, if you remember. So ethers are basically diaryls or dialkyls derivatives of water. Like what? Just see, water is this, what I want to say. So over here both the H are been replaced by R's, right? So these R's can be same, these R's can be different, these R's can be both the alkyl groups or they can be of aryl groups, right? So anything, both can be same, both can be different, maybe possible one is alkyl, one is aryl, one is yeah, both are alkyl groups, both are aryl groups. So this thing, that's why ethers are always mentioned as dialkyl or diaryl derivatives of water. Now you must be understanding what I want to tell you. Okay, now you're getting this concept. So they have come from the water, right? So one thing, like they are classified into two types: simple ethers and second is mixed ethers. Simple ether is also known as symmetrical ethers, and mixed ether is also known as unsymmetrical ether. Now what does it means? Simple ethers, both are either alkyl groups or both are aryl groups attached to it, the eternal group. And in mixed, both the alkyl groups are different or both the aryl groups are different, right? What I want to say according to this definition. And let's focus on it, that what they means actually if we are talking about the simple ethers. So if you talk about the simple ethers, when both the things are same, either both are of alkyl groups, okay, or both are aryl groups. एराइल मतलब एरोमेटिक, इट कम्स इन द एरोमेटिक पार्ट्स, ठीक है. सो ये चीज़ है, मतलब 6 से ऊपर होने लग जाए. तो ओवर हियर बोथ आर एल्काइल ग्रुप्स आर सेम, बोथ द एराइल ग्रुप्स आर सेम. अब बेसिकली ये क्या हो गया, डाई मिथाइल ईथर एंड इट इज़ डाई फिनाइल ईथर. विल लेटर ऑन सी देयर क्लासिफिकेशन, वी आर जस्ट हैविंग एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ईथर्स. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट ऑफ मिक्स ईथर्स व्हेन बोथ आर डिफरेंट. जैसे आपके डिफरेंट हो जाए, ठीक है, ये सिंपल की स्टडी हम कर रहे हैं. Now we study about the mixed ethers. जैसे सपोज करो CH3OCH3, अब यहाँ C2H5 सॉरी. सो बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो क्या नाम क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल कॉमन नेम लेके चलें तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चलेंगे. ई पहले आता है, इथाइल, मिथाइल, ईथर, ठीक है. मिक्स ये हुआ व्हेन बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट और बोथ द एराइल ग्रुप्स आर डिफरेंट. एनीथिंग कैन बी देयर, है ना, या एक एराइल ग्रुप हो जाए, एक एराइल ग्रुप हो जाए, कुछ भी हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल CH3O6H5, ठीक है. तो M मिथाइल हो जाएगा, ये इसको फिनाइल बोलते हैं, ईथर, ठीक है. यहाँ क्या हो गया था, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है. यहाँ क्या हुआ, डाई, ये नया नाम है, डाई फिनाइल ईथर. ये सब तो कॉमन नेम्स है ना, ईथर के केस में हम कॉमन नेम चलते हैं, वो क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इट. नाउ लेट्स कम टू द एलिफेटिक एंड द अदर क्लासिफिकेशन. ये तो एक क्लासिफिकेशन हुई, अब एक दूसरी क्लासिफिकेशन वील स्टडी अबाउट, एंड इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द आर्स, ठीक है. नेचर ऑफ द आर ग्रुप कैसा है आपका, ठीक है, क्या वो एल्काइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप है. तो उसके बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन आती हैं. एक होती है एलिफेटिक ether and other classification is your aromatic ether, ठीक है. now let's come to the aliphatic ether. aliphatic ether कुछ नहीं, जो आपने अभी ये पीछे वाले पढ़े दोनों, मतलब इसमें क्या हो गया था कि सिंपल मिक्स्ड अलग अलग हैं. यहाँ पे एलिफैटिक में दे कैन बी कम इन द सिंपल ईथर्स ऑल्सो, मिक्स ईथर, दोनों एग्जांपल्स इसमें आते हैं. लेकिन बट पॉइंट ये रहता है कि इसमें एल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए. जो आर रहेंगे आपके, जो आर है ना इसके बीच में, ही जो आर लगा हुआ है, ये आर है, ये दोनों बेसिकली एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए. ये फिक्स्ड होता है, कुछ भी हो, चाहे वो सेम की कैटेगरी में आ जाए, यानी CH3OCH3 ये आ जाए,
या CH3OC2H5 हो जाए, लेकिन बेसिकली इनका नेचर क्या है कि ये दोनों क्या है, एल्काइल हैं, ठीक है। कैसे हैं ये, एल्काइल ग्रुप्स हैं, कुछ भी हो, चाहे सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है आपकी एलिफैटिक ईथर में। ये मैटर नहीं करता दोनों सेम रहें या डिफरेंट रहें, ये कुछ भी चलेगा, लेकिन बस ये याद रखना है ये C6 नहीं होना चाहिए, उससे नीचे रहे। ना एरोमेटिक में देखो, इसमें एरोमेटिक ईथर्स में वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये जो दोनों आर ग्रुप्स हैं, ये RL ये लगे हुए हैं आपके आर, ये जो ग्रुप्स होने चाहिए उसमें एटलीस्ट एक तो एरोमेटिक हो, यानी एक तो एराइल ग्रुप हो, दोनों हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दोनों में से कोई एक तो एरोमेटिक होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ दोनों कंडीशन हो जाएंगी, ये दोनों ही आपके एराइल ग्रुप हो सकती हैं या कोई एक, यानी बेसिकली क्या हो जाए, एल्काइल एराइल आपका कंडीशन हो जाए कि एक एल्काइल हो और दूसरा एराइल ग्रुप हो, तो उसका एल्काइल एराइल ईथर हो, या दोनों ही कंडीशन क्या हो जाए, दोनों ही एराइल ईथर्स हो, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही है। सो दिस कंडीशन इज वेरी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो CH3OC6H5, तो एक क्या हो गया, एराइल ग्रुप हो गया है ना, जो अभी हमने पीछे देखा था मीथाइल फिनाइल ईथर। और यहाँ कंडीशन व्हेन बोथ आर, ये दोनों क्या हैं, दोनों ही एराइल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाईफिनाइल ईथर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो बोथ आर एराइल ग्रुप्स, तो ये एक कंडीशन, ये भी एक क्लासिफिकेशन होती है। अब थोड़ा सा नेम का देख लेते हैं, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है बट स्टिल यू शुड रिमेंबर। अब हमें इफ़ यू रिमेंबर दैट देयर आर टू क्लासिफिकेशन, एक तो कॉमन नेम चलता है और एक होता है IUPAC नेम, ठीक है। सो वी शुड रिमेंबर बोथ द नेम्स एंड बेसिकली अगर इनका देखें कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम, आई एम नॉट राइटिंग इट बट यू शुड रिमेंबर कॉमन सिस्टम या IUPAC सिस्टम। लेट्स टेक वन बाय वन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया CH3OCH3 जो अभी हमने देखा था, बोथ आर सेम एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करा, डाई, दो थे तो डाई लगा दिया, C1 है, मिथाइल है, सो इट इज़ मिथाइल डाई मिथाइल ईथर, दिस इज़ द कॉमन नेम, ठीक है। अब ये तो एलिफैटिक हुए, एरोमेटिक में ले लो C6H5O6H5, ये भी दो एक से हैं, तो क्या हुआ, डाई फिनाइल ईथर, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट केस, दिस इज़ द सेकेंड केस। लेट्स सी द अदर केस, CH3 जब डिसिमिलर है, ठीक है, दोनों ही एलिफैटिक हैं लेकिन डिसिमिलर है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो अप करिए, क्या नाम हुआ, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। एक और कंडीशन, जब ये दोनों क्या था, एलिफैटिक है, एक एरोमेटिक लेके चल लो, CH3OC6H5, तो M पहले आता है, P बाद में आता है, ABCD तो आती होगी, सो मिथाइल phenyl ether. So this is the common name system. So this way you can understand. Now let's focus on the IUPAC names, and that is very very important. So that part is, if you remember that we have discussed in class 10th, so it's a pretty long time you must have forgotten. So elk, oxy, alkane, this way we write down its IUPAC name. So whenever you are seeing that where the ethanol group goes, if you remember this part, यहाँ पे एक इथर्नल ग्रुप है, ये देखो दोनों एक से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अगर दोनों एक से आ जाएं CH3OCH3 तो नो प्रॉब्लम, दोनों मेथ हैं, यू विल सिंपली राइट डाउन मिथॉक्सी मीथेन, नो इश्यूज़ ऑफ इट, इफ़ यू रिमेंबर दैट, है ना, ये नहीं है बेटा, methoxymethane, but the problem arises when the two things are different. So where this O go, ये तो equally distributed है, किसी के पास भी चला जाए, लेकिन जब ये different ways of representation होता है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम किसके पास अपना इथर्नल ग्रुप्स को वी शुड सेंड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज फोकस ऑन द कार्बन एटम्स, जो बेचारा कम, देखो ये तो ऑलरेडी इसके पास कार्बन ज़्यादा है तो ये इसको हेल्प करता है, कंपनसेट करता है, अरे भैया तुम कम हो तुम ले लो, है ना, आई एम जस्ट जोकिंग, इट्स नॉट द वे, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस ऑक्सीजन, पर्टिकुलर ऑक्सीजन विल गोज टू दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम विच हैविंग लेस नंबर्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सो इट विल गो टूवर्ड्स दैट द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, इन दोनों में जो एल्काइल ग्रुप छोटा है कौन है,
किसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, वो है मेथ, क्योंकि यहाँ 1 कार्बन आइटम है, इधर 2 है, तो ये स्मॉलर के पास जाएगा, ये याद रखना हमेशा, जो छोटा है उसके पास भेज दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथॉक्सी, और ये क्या नाम हो जाएगा आपका, ईथेन। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल हाउ टू राइट डाउन इट्स IUPAC नेम। Now please see certain complicated one examples, थोड़ा बहुत तो याद रखना चाहिए क्योंकि these are coming in your examinations. So basically अगर इसको आप कंडेंस करके देखेंगे तो ये C6H5OCH3 हो जाएगा। वो वाली तो बात अलग है कि आपने आराम से मिथाइल फिनाइल ईथर्स लिख के आप भग लिए, है ना, वो एक इजी केस था। लेकिन अब कंडीशन थोड़ी फ़र्क है। बेसिकली अगर इसको ध्यान दो, अगर IUPAC नाम, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू, जो इथेनॉल ग्रुप होता है वो बेसिकली आपका यहाँ पे जो है वो लेस कार्बन एटम के पास जाता है, तो यानी बेसिकली इट विल गोज टूवर्ड्स मिथॉक्सी, दैट इज़ क्लियर, ठीक है। अब ये जो C6H5 है, यहाँ हम फिनाइल नहीं लिखेंगे, बेसिकली दिस हैज़ बीन, अगर इफ़ यू रिमेंबर, इट इज़ अ बेंजीन रिंग। स्ट्रक्चर से देखो, ये बेंजीन का पार्ट है ना, बेंजीन में से एक H निकला है, उसकी जगह OCH3 लग गया है, ठीक। तो बेसिकली ये मिथॉक्सी बेंजीन इसका नाम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन में यहाँ एक हाइड्रोजन आइटम होगा, वो हटके उसकी जगह OCH3 अटैच्ड हो गया, तो इट इज़ मिथॉक्सी बेंजीन। ये तो क्लियर है कि ऑक्सी तो अब जो छोटा कार्बन आइटम है उसके पास जाएगा, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप कम होगा उसकी तरफ माइग्रेट करेगा। इसका एक और नेम होता है, कॉमन नेम एनिसॉल, क्योंकि आपको कन्वर्जन आएगा तो बार बार एनिसॉल करके दिया जाएगा। मिथॉक्सी बेंजीन तो रेयर ऑफ द रेयर केस दे ऑलवेज गिव यू, ठीक है। सो नाउ लेट्स एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ लगा हुआ है एक C2H5 CH3। अब बेटा देखो, ये ध्यान दो, ये अलग से है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम इस पे यहाँ 2 कार्बन एटम्स हैं, तो ये इथेनॉल ग्रुप इसके पास जाएगा। सो इट विल बी योर, अगर आप देखें तो ये इथॉक्सी, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन फ़र्क है ना, थोड़ा फ़र्क चीज़ें हैं, तो 1 2 3 4 हैं, तो ब्यूटेन की कंडीशन है, और ये इस कार्बन आइटम पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन आइटम 1 2 है ना 3, तो आप ये 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। अभी तक हमने बाकी कंडीशंस में नहीं नंबरिंग लगाई थी, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से चेन फॉर्म में है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू शो देयर पोजीशन ऑल्सो। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। मैं तुम्हें IUPAC नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ सर्टन थिंग्स कम्स देन यू शुड रिमेंबर। So let's focus on it, the other part, its preparation. We'll directly go to the preparation part of ethers, and preparation में हमारा Williamson synthesis या reaction बहुत important है। So this is one of the best method for preparation of ethers, बहुत बढ़िया method होता है, और एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं विद सोडियम और पोटेशियम के साथ, पोटेशियम एलॉक्साइड के साथ, टू फॉर्म द ईथर्स, ठीक है। आई शो यू व्हाट आई वांट टू से टीच यू दैट इसमें कोई भी एल्काइल हैलाइड आप यूज़ करोगे, और उस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप बेसिकली सोडियम एल्कोक्साइड या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराता है, ठीक है, और तब आपको बेसिकली ईथर मिलता है, ठीक है। ईथर जो इसमें मिलता है वो बेसिकली आपका कैसा भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, दोनों तरीके के भी हो सकते हैं, नो इश्यूज़ अबाउट इट, राइट। और बाय प्रोडक्ट तो ऑब्वियस से मिलेगा ही मिलेगा, जो आप लोगे इसमें वो वैसा आपको बाय प्रोडक्ट, यहाँ याद रखना कैसा भी ईथर हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है और आपका मिक्स्ड ईथर भी हो सकते हैं ना, डजेंट मैटर, नो इश्यूज़। और यहाँ पे डिपेंड करेगा जो आप लोगे, अगर सोडियम लोगे तो यहाँ पे आपको NaX बनेगा, अगर आप पोटेशियम लोगे तो आप KX आपका बनेगा, मतलब कोई भी सोडियम हैलाइड या पोटेशियम हैलाइड यू विल गेट। नाउ विल कम टू द रिएक्शन पार्ट। सपोज़ करो हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड अपना चूज़ करा, क्योंकि ये हमारी चॉइस है कि हम कौन सा एल्काइल हैलाइड चूज़ करते हैं। तो सपोज़ करो हमने यूज़ करा CH3 और सपोज़ करो Br हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और सोडियम एल्कोक्साइड हम लेते हैं, इसमें भी याद रखना एल्कोक्साइड है। और आप अगर चलो इसमें एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं तो और अच्छी बात रहेगी, जैसे कोई भी एल्काइल हैलाइड आपने यूज़ करा और इसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, या तो आप
RONA अगर आप सोडियम का लेके चल रहे हैं, पोटेशियम लेंगे तो ROK आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ ईथर का तो आपको मालूम ही है, कोई इशू नहीं है, ROR सेम डिसिमिलर कुछ भी, और ये भी आपके पास है, तो ये एक आपका जनरल फॉर्मूला बन जाता है। इससे हम इजीली वी कैन फॉलो अप। तो RX हमने कोई भी अल्काइल हैलाइड CH3Br ले लिया। अब यहाँ पे हम चलो सोडियम मिथॉक्साइड ले लेते हैं, क्योंकि सोडियम एल्कोक्साइड है, तो वी आर यूजिंग सोडियम मिथॉक्साइड आई एम टेकिंग, राइट, सोडियम मिथॉक्साइड वी आर टेकिंग। अब हम इसका कॉम्बिनेशन देखें। देखिए यहाँ ईजिली दिया रखा है, सोडियम का केस है, NaX बन रहा है, इन दोनों को जोड़ लो। सो बाय प्रोडक्ट चाहो तो बाद में लिख लेना, यू पुट इट NaBr। अब इसको अटैच कर लो, क्या बना CH3OCH3। अभी कैसा ईथर बन गया आपका, सिंपल ईथर, ठीक है, डाईमिथाइल ईथर बन गया या मिथॉक्सी मीथेन बन गया। सो यू कैन अब देखो पीछे की IUPAC नेम याद करने से, उसको अंडरस्टैंड करने से आई थिंक यू आर क्वाइट केपेबल टू राइट डाउन द नेम्स। सो देर इज़ नो इशू, चाहे आप डाई मिथाइल ईथर लिख लीजिए या मिथॉक्सी मीथेन लिख दीजिए, वॉट एवर यू कैन राइट डाउन। सो दिस वे यू कैन मेक इट। आप डिसिमिलर भी बना सकते हैं, सिमिलर भी बना सकते हैं, डिसिमिलर भी बना सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस, राइट, है ना। डिसिमिलर बना के देख लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी कोई भी चीज़ आ जाए। तो यहाँ पे आपका CH3OC2H5 और यहाँ NaBr, इन प्लेस ऑफ Na यू कैन यूज़ K, नो इश्यूज़। सो देखो वहाँ सिमिलर मेरा ईथर, यहाँ सिंपल ईथर मिला, यहाँ मिक्स ईथर मिला, तो डजेंट मैटर, यू नो हाउ टू राइट डाउन द नेम्स। तो आपने सिंपली मिथॉक्सी ईथेन इसका नाम लिख दिया, और अगर वैसे लिखना है तो इथाइल मिथाइल ईथर्स। कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने पड़ेंगे। इसमें देखो मैकेनिज़्म नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है वो एक आपको याद देना है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लास 11th का है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें, दैट टेक्स प्लेस। और कैसे होता है, ऑफ हैलोजन एटम ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय एल्कोक्साइड, ठीक है, पॉइंट है, ठीक। कंडीशन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि ये विलियमसन्स जो सिंथेसिस है वो सब पे एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल एप्लीकेबल इन ऑल द एल्काइल हैलाइड्स। बेसिकली जो टर्शरी हैलाइड्स होते हैं उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द एल्काइल यू सिंथेसाइज, टर्शरी कंडीशन आप बनाते हो तो वो कंडीशन में आपको नहीं यूज़ करता है ना, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वहाँ थोड़ा आपको चेंजेस करना पड़ता है। विल फोकस दैट एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। तो आई हैव रिटन इज इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन एल्काइल हैलाइड इज टर्शरी, इज दिस टर्शरी हैलाइड्स दे गो फॉर डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है, एटम नहीं है, डीहाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ sodium alkoxide, which are strong base, which basically acts as strong base, and it arises because of the steric hindrance। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना कैसे होगा। जैसे आपने कोई भी टर्शरी हैलाइड, ये हो गया है ना, कार्बन एटम है, और इस तरह से आपका टर्शरी हैलाइड है, आपने इनको वही सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करा, तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आता है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप सोचो कि जैसे अभी आपको ईथर्स मिल रहा है, तो यहाँ आपको ईथर जैसी चीज़ कहाँ मिल रही है, आप फ़र्क हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो ये Cl जो है ये Na के साथ मिलके हम पहले बाई प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, NaCl बना लेता है, ठीक है। ये CH3O के साथ यहाँ से कोई भी, या तो ऊपर वाले से इधर से कोई H ले लेता है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बचा क्या, इसका Cl गायब हो गया, यहाँ से H गायब हो गया, चलो जो चीज़ बची है पहले उसे लिख लेते हैं, CH3, ठीक है, कहीं से भी ले लो, अगर ऊपर से ले रहे हो तो ऊपर से ले लो, नीचे से ले रहे हो तो ये पूरी चीज़ जा चुकी है, यहाँ से एक जा चुका है, यहाँ CH2 बचा। अब बैलेंसिंग देख लो, इस कार्बन में 1 2 3 है, यानी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ यू आर गेटिंग अ ईथर, यू आर नॉट गेटिंग अ ईथर, यू आर गेटिंग अ कंपाउंड विच इज़ होल्डिंग अ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक होता है कि आपको टर्शरी के केस में कभी भी ईथर्स नहीं मिलते हैं, ये एक प्रॉब्लमेटिक केस आता है, ठीक है। ठीक, आप सपोज़ करो अगर आप चाहते हो कि आपको टर्शरी ईथर्स मिले, तो थोड़ा सा इस
कि इसको चेंज करना पड़ता है। जैसे आपको जो टर्शरी ईथर्स, इफ़ यू वांट द रिएक्शन शुड बी देयर एंड यू वांट दैट टर्शरी, भाई इससे क्या होना चाहिए था, भाई यहाँ पे हट के टर्शरी ईथर मिल जाता, लेकिन नहीं मिल रहा आपको। भाई यहाँ Cl हटता, OCH3 या OC2H5 कुछ भी लग जाता, ये तो टर्शरी ईथर होता, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है ना। बट नाउ यू वांट, तो यू हैव टू चेंज दिस कॉन्सेप्ट। इंस्टेड ऑफ एल्काइल हैलाइड यू विल यूज़ एल्कोक्साइड, लेकिन टर्शरी एल्कोक्साइड लो। कैसे? जैसे अभी तक तुम क्या ले रहे थे, CH3ONa ले रहे थे, है ना। अब ये ना लो, टर्शरी का कंडीशन हो गया कि यही कंडीशन ऊपर जो है वही आप लीजिए, लेकिन इस तरह से लीजिए, ठीक है। तो Cl के बदले आपने ONa लगा दी। अब आप एल्काइल हैलाइड के साथ कॉम्बिनेशन कराइए, तब आपकी कंडीशन आराम से हो जाएगी। यहाँ से NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और आपके पास टर्शरी ईथर यू विल गेट। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ता है। दिस इज़ द केस ऑफ योर टर्शरी ईथर। तो आपको टर्शरी ईथर लेना है तो यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू यूज़ अ टर्शरी एल्कोक्साइड इंस्टेड ऑफ दिस थिंग। एल्काइल एल्कोक्साइड आपने यूज़ कर, ये सोडियम एल्कोक्साइड, ये पोटेशियम एल्कोक्साइड लिया है, लेना यहाँ पे भी सोडियम का ही है, लेकिन आपको सोडियम का टर्शरी एल्कोक्साइड लेना है, ठीक है। तब आपके पास आराम से, और यहाँ पे जो आप एल्काइल हैलाइड लेंगे वो सिंपल अपनी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स लीजिए, यू विल गेट द टर्शरी एल्कोहल, सो इट इज़ टर्शरी सॉरी ईथर, you will get it, right? Now there is one question: if a teacher give you methoxybenzene from how will you formed methoxybenzene from Williamson synthesis या Williamson's reactions, तो कैसे करें methoxybenzene को बनाए। अब पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि methoxybenzene होता क्या है। methoxybenzene अभी पीछे बताया था मैंने, इसीलिए मैंने कहा था इस चीज़ को याद रख लीजिए, आप एनिसोल को रट लीजिए, ठीक है। ये था। अब आपको इससे बनाना, कैसे बनाएंगे, क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बेंजीन की, अभी तक आप क्या ले रहे थे, बस आप सोडियम फिनॉक्साइड ले लीजिए, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड ले लीजिए, सोडियम फिनॉक्साइड आप लीजिए और किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ करा लीजिए। अब कौन से एल्काइल हैलाइड, क्योंकि मिथाइल लगा हुआ है तो CH3, बस यही है आपका विलियमसन सिंथेसिस। बस NaCl आपका बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा और दिस इज़ द केस, यू विल गेट इट OCH3. So this much we have covered, and this is the part of your introductory of your ethers and its preparation of ethers, Williamson synthesis. In the next video we'll discuss about the different physical properties and chemical properties of ethers.